शुभम, आपको मिल गया आंसर? यस मैम, वो फॉर्मूला भूल गया था, तो फिर रिड्यूस हो जा रहा है। एक्चुअली ये सिलेबस में नहीं है अपने, ये एनटीसी में भी नहीं है और कंप्यूटर में भी नहीं है। जैसा आपने पूछा इसलिए वो बता दिया। यस मैम, थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून ऑल। मैं भी आज पहली बार मोबाइल पे लेक्चर ले रही हूँ। विल डिस्कस फ्यू पॉइंट्स एंड आई विल गिव यू homework. Okay, we'll start sum of products. I will share screen. देखो आपको और ये बीच बीच में बच्चे एडमिट होंगे तो कैसे होगा? Can you see the screen? यस मैम। अभी बच्चों को मुझे एडमिट करने के लिए नहीं आएगा शायद, ये बार बार बताना पड़ेगा उसको। एक मिनट रुको। Okay. In last lecture, I explained you about Karnaugh map. I think K-map, all of you understood this. क्या हो गया? अरे मोबाइल में मैं पैरेलल नहीं कर सकती हूँ। जाने दो, अभी जितने हैं उतने हैं बच्चे। See, we have to see the minimization of SOP and POS using K-map. That is sum of products. SOP is a sum of product. So what is in there? That you have to form the fundamental product and you have to draw the K-map for this and again realize by using the logic gates. Okay. Now for possible ways to AND two or more input signals. अभी two signals है तो two variables है. So what will be there? There will be the four ways that you can AND. That is a bar, B bar. You will get the output as a bar, B bar, A bar, B, A, B bar, and AB. Okay. This is the one thing. Now we have seen that min terms and max terms. In case of sum of products, we are calling each term as a min terms. Just keep in mind that this is called as a min terms. Okay. Now see the products. Am I audible? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Then products A bar, B bar, A bar, B, AB bar, and AB are represented by C.
we have seen that the decimal equivalent of this, that is the M0, M1, M2 and M3 respectively. This we are calling it as a min terms in case of the sum of product. Okay. And the suffix I of Mi, you can say that a Mi, that comes from the decimal equivalent of the binary values. हम लोग अभी M0, M1, M2, M3 बोल रहे हैं ना, तो I क्या है वो suffix, that is a decimal equivalent of that binary values. Okay. Next. See, you have provided with this truth table, or either may you have provided with this equation, last equation, that y equal to f a b c. That means there are three variables, or that is given as a summation m min terms 3, 5, 6, 7. Okay. So what it means, that for these variables of this combination, you are getting high output. मैं अभी मोबाइल पे हूँ, इसलिए मैं अभी इन किसी को नहीं करूंगी. चलने दो. Okay, can you see this table? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then A, B, C, these are the three inputs or three variables, and Y is given. Okay, Y, where Y is 1? For the only four combination, that for 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, and 1, 1, 1. Output is given as a high or logic 1. Okay. Now how you can write the equation for this? That A is 0 means it can be written as a bar. B and C. So that is A bar BC. Y is equal to 1 for A bar BC. Then A B bar C, that is 1, 0, 1. Okay. Then 1, 1, 0, that is A B C bar. And 1, 1, 1, that is A B C. Now, how we will get the sum of product equation? That what you have to do, sum of product. What we are saying? Sum of product. So all we have to do is all the fundamental products. अभी ये क्या आ रहा है? Is it A bar B C, A B bar C, A B C bar A B C? That is the product. And what we have to do? Sum of products. So what will be the equation for that? Y is equal to A bar B C plus A B bar C plus A B C bar plus A B C. Also, you can write like this: y equal to function A B C, that is equal to summation m 3, 5, 6, 7. कई बार इक्वेशन दिया रहता है, कई बार स्टेटमेंट में दिया रहता है, कई बार ये लास्ट का जो इक्वेशन है इस टर्म में दिया रहता है. उसके हिसाब से आपको ये सब कुछ करना है. ये समझ में आया? Yes, Yes. ma'am. This equation is important. Sum of product equation. How to write sum of product? क्योंकि जब प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्लेन करते हैं उसके बाद बच्चे इस सम ऑफ प्रोडक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं. देखो आउटपुट कैसे लिखा है हमने, इन टर्म्स ऑफ द सम लिखा है एंड इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट लिखा है, और हमें क्या कर लिखना है इक्वेशन, सम ऑफ द प्रोडक्ट. सो वी आर गेटिंग आउटपुट इन द प्रोडक्ट फॉर्म एंड यू हैव टू टेक द समेशन ऑफ ऑल दिस प्रोडक्ट्स. गॉट इट? Yes, ma'am. स्पेसिफिकली पूछते हैं क्वेश्चन एसओपी और पीओएस इक्वेशन राइट लिखने के लिए. नेक्स्ट तो के मैप है. अभी एक बार ये समझ में आया, ये स्क्रीन आप लोगों ने नोट डाउन किया क्या है? क्योंकि उसके ऊपर के मैप है. मैम स्क्रीनशॉट लिया. स्क्रीनशॉट लिया, सभी ने लिया क्या? क्या एक बार फिर से दिखा दूं? Yes, ma'am. लिया है, फिर भी आपके पास बुक में चाहिए. उसके बाद ही आप लोगों को क्या आएगा, के मैप प्रोड्यूस करने के लिए आएगा. ठीक है, फिर उसका रिडक्शन है. रिडक्शन इज नॉट नेसेसरी, बट यू हैव टू एबल टू स्केच दैट के मैप. ओके, वी विल सी दिस. Now for ENTC students, are there ENTC students? अरे यार. Yes, ma'am. You are having the canonical sum form also. Okay,
This is also in the form of canonical sum form. So what is that canonical? सेम रहता है, सिर्फ सभी इक्वेशन वगैरह प्रोड्यूस करना सेम एज इट इज, बट कैनोनिकल में क्या रहता है कि सभी वेरिएबल उसमें इंक्लूड होने चाहिए. देखो ये जस्ट रीड इट, वेयर समेशन वी नो दैट इट इज अ सिंबल ऑफ समेशन. Y equal to f a b c means y is a function of three Boolean variables a, b and c. Presentation of a truth table is also known as a canonical sum form. आप लोग अगर कई इक्वेशन देखोगे बाद में, बहुत सारे सम लिए तो कई में कोई वेरिएबल मिसिंग रहता है, सो दैट वी कांट कॉल एज अ कैनोनिकल सम फॉर्म. कैनोनिकल सम फॉर्म इज व्हाट? It should contain, each minterm should contain each variable. Got it? Yes, ma'am. मैं आपको अलग से नोट्स भी दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी इक्वेशन क्या था, हमें हमारा वो क्या, हमें क्या करना है अभी, उसकी लॉजिक सर्किट डायग्राम इंप्लीमेंट करनी है. ओके, नाउ ए बार बी सी, which gate you will require to build it? And yet, AND गेट पाहिजे, बरोबर आहे, प्रोडक्ट, बिकॉज देर इज अ प्रोडक्ट. सो फॉर दैट वी हैव टू use the AND gate. How many inputs are required for AND gate? 3 inputs. 3 inputs. That is A bar, B, C. Okay. 1 minute. I will. Okay. This is the logic diagram that A bar B C. You are using the, you have to use the AND gate. So to get A B bar C, also you have to use the 3 input AND gate, A B B C bar and A B C. And what is the final equation for this? Y is equal to A bar B C plus A B bar C plus A B C bar plus A B C. Means which gate you have to use now? or gate. OR gate. You have to give this output to the OR gate as an input, so that you will get that finally that equation. समझ में आया सभी को? बहुत इजी है ये. Yes, ma'am. सभी को समझ में आया? Okay, we'll see a few examples. पहले ये देखते हैं sum of product example. See, this is given. Write down this. Now there are how many variables or how many inputs? 4. 4. Function is given like a x, y, z, comma w. Okay, that is equal to summation of m for min terms. 0, 1, 2, 5, 8, 9, 10. Now your binary equivalent is given. Sorry, decimal equivalent is given. Not truth table is given. Okay, now you should able to draw the K-map for this. There are 4 variables, means how many cells should be there? 16.
कितने 16. कैसे आ गए, कैसे, क्या फॉर्मूला है? दैट विल बी फॉर इन सेम एग्जाम. 2 to the power n or n number of variables. Good. 2 raised to n. That n indicates number of variables. Now we are having the 4 variables. So there will be the 2 raised to 4 equal to 16 cells. Okay. Now draw the K map. See there, xy is written on this side and zw is written on that side. So 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Again 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. तो हमें क्या किया, प्रोवाइड किया है, आउटपुट कहाँ पे हम लोगों को 1 मिलने वाला है? 0, 1, 2, 5, 8, 9, 10. उस प्लेस पे आपको क्या लिखना है? 1 लिखना है. Otherwise, write down 0 for another places. Okay? ये लिखो आप लोग सभी. पेज ले लो क्योंकि के मैप निकालनी है, उसका रिडक्शन भी है. आपको क्वाड पेयर करने हैं वहां पे, उसके हिसाब से इक्वेशन अलग अलग आएंगे. हो गया ये सभी का? Yes, ma'am. All students. Yes, ma'am. बिकॉज द सब्जेक्ट इज नॉट ओनली थेरोटिकल. मैं कुछ भी बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, इतना ही नहीं होगा. अगर आप लोग खुद से लिखोगे नहीं, वहां पे 1 लिखने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ पे मेरा 1 है, कैसे कॉम्बिनेशन आ रहा है. आप लोग अगर गलती से उल्टा पुल्टा लिख लोगे तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा. के मैप गलत हो जाएगी, उसके वजह से लास्ट की इक्वेशन भी जो आएगा दैट विल बी ऑल्सो रॉन्ग. लिया है उस साइड पे ZW लिया है, उसके हिसाब से 0, 0, 0, 0. दैट इज फर्स्ट सेल विल बी 4, 0. दैट मीन्स इट इज अ 0. सो 0 के लिए हम लोगों को है यहाँ पे आउटपुट. सो यू हैव टू राइट डाउन 1. सिमिलरली फॉर 1 यू हैव टू राइट डाउन 1. देन 5, 5 कहाँ पे रहेगा? 0, 1, 0, 1. इज इट? 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 0 1 0 1. 8 का हम लोग अभी उल्टा पुल्टा लेते हैं. यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी डेसिमल इक्विवेलेंट दिया है, मतलब मिन टर्म्स आर गिवन. 8 का बोलो. 1 triple 0. 1 triple 0. Right, right. 9. 1 0 0 1. Very good. 1 0. 10 10 के लिए 1 0 1 0. 1 0 1 0. that will be the last cell. 1 0 1 0. See, this is important. Okay. Now, can you try to reduce that K map? You have to form the pair quad or octet if it is forming. Octet will not be formed because it's a 4 by 4. So that will be, you have to form the pair or quad, and remaining one we have to circle it. There can be different combinations. See, this is one combination. How many pairs are there? Just see it and tell me. 4. 2 pair, ma'am. 2 pairs, ma'am. 2 pairs. Okay. Is there any quad? Yes, ma'am. एक quad plan. Yes, ma'am. एक क्वाड है. ओके. तो अभी आप लोग इसका इक्वेशन लिखो, फिर बाद में नेक्स्ट है, क्योंकि शुभम आपने बोला था ना कि ये पेयर क्वाड करना ही डिफिकल्ट जाता है. अगर Yes, इसे ma'am. अलग तरीके से बनाया तो एक वेरिएबल और कम हो जाएगा. तो दैट विल बी द करेक्ट वन. ओके, दिस इज नॉट करेक्ट, बट इवन दो यू राइट द इक्वेशन फॉर दिस एंड टेल मी. हम लोग लास्ट का इक्वेशन फिर देखेंगे. मैम जैसे एक और क्वेश्चन पूछना था. जैसे पहले यहाँ पे एक्स वाई लिए और फिर ऊपर में जेड डब्ल्यू लिए, तो उसका पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो भी मैम फर्क पड़ेगा? नहीं, उसके हिसाब से वर्टिकल में 1 भी अलग तरीके से आएगी. आपको पहले लेकिन एक्स वाई के लिए ही बोलना पड़ेगा. एक्स वाई ही आपका 0 0 रहेगा ना. ओके मैम.
दो तरीके से करके देखो क्या अलग आ रहा है क्या। ऑल स्टूडेंट्स यू हैव टू टेल मी द इक्वेशन फॉर दिस स्केम मैप। ऑलरेडी हम लोगों ने पेयर और क्वाड फॉर्म किया है, आप लोगों को ये भी तकलीफ नहीं है। ओके अभी तक समझ में नहीं आया है कि पेयर कैसे फॉर्म करने हैं, क्वाड कैसे फॉर्म करने हैं। आई हैव टॉट यू इन डिटेल इन लास्ट लेक्चर। ग्राफिकली हम लोगों ने कलरफुल दिखाया है। सो इज देयर एनी डिफिकल्टी एट? किसी को क्वाड समझ में नहीं आया ऐसा कोई है क्या? अगर कोई नए बच्चे भी हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर के, यू कैन आस्क मी। मैम फॉर्मूला आता है बार डब्ल्यू बार प्लस एक्स बार जेड डब्ल्यू प्लस एक्स वाई जेड बार। ओके करेक्ट। एक्स वाई बार और एक्स वाई किसी का अलग आया है? मैम शायद मेरा अलग है। वाई बार डब्ल्यू बार प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स बार जेड बार डब्ल्यू। यस दिस इज करेक्ट वन। अभी प्रबल ने आंसर दिया था क्या? अनुजय मैम। देखो क्या गलत हो गए। सभी का आ गया? यस मैम। अभी शुभम ने जो आंसर बताया वो सही है। अगर किसका अलग आया है तो देखो, एक्सप्लेन करना है तो वैसे बोलो। Should I go ahead? एक्सप्लेन कीजिए मैम एक। क्या? एक्सप्लेन कीजिए ना मैम एक बार। आप लोग केमेट के वक्त थे क्या? क्या पता ही नहीं यस केमेट मैम। पहले पेयर कैसे? ओके ठीक है। अभी देखो ए पेयर मतलब क्या? टू वंस दे विल बी देयर। क्वाड मींस देयर विल बी फोर वंस। ओके सो कॉर्नर के चार देखो, वो कॉर्नर के चार वन है। आ रहा है समझ में? इट यस इज मैम। फॉर्मिंग, हाँ दिस इज कॉल्ड एज अ क्वाड। क्वाड फॉर्म करने के लिए बच्चों को तकलीफ होती है क्योंकि समझ में नहीं आता, ठीक है। तो दिस फोर आर फॉर्मिंग अ क्वाड। तो क्वाड के लिए अभी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अभी हॉरिजॉन्टल देखो, हॉरिजॉन्टल पहला वाला वन और लास्ट का वन, कंपेयर दैट वन। एक हॉरिजॉन्टल 0 0 एंड 1 0। ओके व्हिच वेरिएबल इज चेंजिंग हियर, एक्स और वाई? एक्स। जो एक्स मैम। हॉरिजॉन्टल लाइन, x is a changing variable. Okay so what is remaining? What is in kmap? That we are eliminating the changing variable. Okay so x is going to eliminate because it is changing from 0 0 to 1 0, that is 0 to 1, it is changing, and y is remaining constant. So and now it is a 0. So how 0 we are indicating? We are indicating as a y bar. Got it? यस मैम। 1 1 रहता तो हम लोग अभी उसके लिए y लिखते हैं। ए एक हो गया। ओके अभी वर्टिकल देखो, वर्टिकल में यहाँ पे क्या है? 0 0 और लास्ट कॉलम में क्या है? 1 0। सो नाउ व्हिच वेरिएबल इज चेंजिंग? एक्स। ZW।
उस साइड पे अभी x नहीं है, उस साइड पे अभी zw है. So which variable is now changing? Z चेंज हो रहा है, Z W चेंज हो रहा है. Correct. Z change हो रहा है, so that is going to eliminate. Okay. And W is remaining, but now W is a 0. So 0 we are indicating as a bar. So W bar. यहाँ पे क्या आया था? Y bar. और वहां पे क्या आ गया? W bar. So quad के लिए अभी इक्वेशन हमारा क्या हो गया? Y bar, W bar. Is it clear? Yes. See, next there is a vertical 1 1. So it is forming a pair. Okay. What about ZW? That will be remain as it is. ZW is a actually how 0 1, there is a 0 1. So how we are going to indicate it? ZW हम लोग कैसा indicate करेंगे 0 1 को? Z ZW. W bar. Z is 0, so Z bar will be there and that will be W. Okay. So वो तो Z bar W हो गया. अभी इस साइड पे देखो XY. XY is 0 0 and 0 1. Okay. पेयर देख रहे हैं ना हम लोग, तो वो 0 0 0 1 में आ रहा है. तो यहाँ पे अभी कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है? Y. Y. Y variable is a changing and X is remaining constant. So X is now 0. So that will be X bar. Okay. So now what will be that pair equation? That X bar, Z bar, W. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. अभी लास्ट देखो, लास्ट 1 1. अभी बोर्ड पे तो मुझे भी ज्यादा मजा आता है आप लोगों के फेसेस देखकर भी. अभी यहाँ पे ऐसे ही समझना पड़ेगा. 1 1, लास्ट का 1 1, लास्ट रो का जो है हॉरिजॉन्टल 1 1, यू हैव टू नो कंपेयर. ओके. इस 1 0 का तो चेंज होने का कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब दैट विल बी एज इट इज. सो दैट XY कैसे लिखेंगे हम 1 0 के लिए? It's Y bar. XY bar. Very good. So first write down XY bar. Now see here vertically. Vertically it is going to change from 0 0 to 0 1. Okay. Now which variable is changing here? W. W. So that will be cancel, isn't it? And Z we are indicating as a Z bar. So what will be the equation? X Y bar Z bar. आ गया समझ में? Yes, ma'am. Okay. Now see, now this is again not correct. Why? See this one. How many quads are there? दो क्वाड्रेंट है. Are there 2 quads? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. 4 corner, that 1 1 1, and again these 2 are there, 1 1 1 1. So these are again one more quad, and this 1 1 we are keeping as it is in a pair form. Okay. See, again there are these forming 3 pairs. Any 3 pairs means we are forming 2 quads and 1 pair. Now write down equation for this and see the change. अगर हम लोग इस टाइप से पेयर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस टाइप से कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? यू हैव टू टेल मी कंक्लूजन फ्रॉम इट. ओके. किसी को लगेगा कि ये ज्यादा अच्छा है तो मैं यही फॉलो करता हूँ, इसमें और मोर कॉर्ड बनाना है तो ये डिफिकल्ट लग रहा है, इसका इक्वेशन लिखना डिफिकल्ट जा रहा है. आप लिखो और मुझे कंक्लूजन बताओ उन दोनों इक्वेशन का. ओके. राइट. सेकेंड वाला जो के मैप है उसका फॉर्मूला आ रहा है y बार w बार प्लस y बार z बार प्लस y बार z w बार. मैम डिफरेंस इसमें ये आ रहा है ना कि जो पहला वाला हमारा कॉम्बिनेशन था उसमें सिर्फ एक टर्म था जिसमें 2 वेरिएबल था, बाकी जो 2 टर्म था उसमें 3 वेरिएबल आ रहा था. और जो अभी हमने निकाला है फॉर्मूला उसमें 2 टर्म में 2 ही वेरिएबल आ रहा है और सिर्फ एक टर्म में 3 वेरिएबल आ रहा है, तो सॉल्व करना ज़्यादा आसान है.
means number of inputs are minimized, isn't it? इक्वेशन एक बार फिर Yes, से ma'am. बता दो, गलत लग रहा है मुझे इक्वेशन. क्या बोला? Y bar W bar plus Y bar Z bar plus Y bar Z W bar. और किसी का अलग आया है? No, ma'am. Uh, देखो कुछ गलत हो गया क्या? यस मैम, गलत हो गया मैम, एक पेयर मेरा छूट गया मैम, तो फिर प्लस आ जाएगा X बार Z बार W. See, this will be the equation. Okay, y bar w bar plus y bar z bar plus x bar z bar w. All students please note down things जिनको समझ में आ रहा है. कभी स्टूडेंट्स फास्ट रहते हैं, कभी कभी स्लो रहते हैं. आप लोग बाद में खुद से ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो. जस्ट राइट डाउन दिस इक्वेशन, ड्रॉ दिस के मैप. लास्ट का समझ में आया सभी को इक्वेशन? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ गया. लास्ट के लिए फिर से एक्सप्लेन करना है. वही है, एक बार आ गया ना समझ में तो हम लोग खुद से आराम से कर सकते हैं. पहले पहले टाइम लग सकता है, धीरे धीरे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. जब बहुत ज्यादा सम सॉल्व करोगे ना, तो ऐसे सिर्फ देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये इक्वेशन आएगा. आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, बिकॉज दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम द गेट पॉइंट ऑफ व्यू. आप लोग अगर थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में गेट के लिए अपेयर होने वाले हो, तो डिजिटल के ये बहुत इस टाइप के सम बहुत रहते हैं गेट एग्जाम में. और ये डिजिटल का एक अच्छा रहता है कि एक बार अगर चीजें समझ में आई तो थ्रू आउट हमारे ध्यान में रहती है, बी तक आराम से रहती है. जस्ट गो थ्रू इट conceptually, then you will not get any problem. Should I go ahead? यस मैम. Yes, ma'am. किसी को लास्ट का फिर से एक्सप्लेन करना है? 2 क्वाड्स आर देयर. पहले जैसा ही है, सिर्फ लास्ट क्वाड देखो, ट्राई करो, समझ में आ जाएगा. आप 3-4 लोग मत बोलो, बाकी के बच्चों को बोलने दो. मुझे समझ में नहीं आता है, फिर बाकी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. अदर स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई. किसी को ड्रॉ करने के लिए, सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए क्या अभी? कोई कुछ नहीं बोलता है. ओके, कितना टाइम हो गया? Should we go ahead or यस मैं मैम, आपको बट 2 सम दे दूं इसके ऊपर के? ओके वेट, आई विल फॉरवर्ड इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. ये सेशन चालू रहने दो, आप लोग सॉल्व करो. डोंट केयर का बाद में लेती हूँ, क्योंकि मोबाइल पे मुझे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. आप लोग कभी व्हाट्सएप तो एक्सेस कर सकते हो ना चालू में? ऑलरेडी आई हैव गिवन इन एनटीसी ग्रुप. ओके, आई विल फॉरवर्ड इट. ये भी शेयर करो सकते हैं इसी कंप्यूटर का है. यस मैम. देखा मैम आपने? एग्जांपल 3.8 और 3.9 बनाना है. Yes, ma'am. हाँ, दोनों करो. एक मिनट. हाँ, 3.8 और 3.9. जस्ट टेक इट एज अ होमवर्क. अभी एक बार में आ रहा है क्या
सभी के पास है अभी? मैं भी शेयर नहीं करूंगी यहाँ पे। स्टॉप शेयरिंग। Code for today's lecture is 9. See, I will read the question that what is given. Suppose a table has a high output for an input 0, 0, 0, 0. सिर्फ 0, 0, 0, 0 के लिए क्या है? आउटपुट हाई है. लो आउटपुट्स फॉर 0, 0, 1 to 1, 0, 0, 1. ओके. अभी डोंट केयर का नहीं पढ़ा था. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. डोंट केयर के लिए हमें सिर्फ क्रॉस वहां पे निकालना है. ओके. So for 001 to 1001 and don't cares for 1010 to 111. इसके लिए 001 to 1001 के लिए क्या है? लो है. लो है मतलब 0. ओके. Don't cares for 1010 to 1111 and high for what? 0000. बहुत ही easy है. You have to first what you have to do it, write down the equation for it. What will be that? Y is equal to Boolean equation. मैम ए बार बी बार सी बार डी बार क्योंकि एक ही के लिए हाई है. सिर्फ 0, 0, 0, 0 के लिए हाई है. So that equation will be y is equal to a bar, b bar, c bar, d bar. Accordingly, draw the K map. Write down 1 in that place, that 0, 0, 0, 0. अदरवाइज जहाँ पे 0 बोला है, लो आउटपुट बोला है, वहां पे 0 लिखो. उसके लिए मार्क्स रहते हैं. अभी आप लोगों का ऑनलाइन रहेगा इनसे तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन ऑफलाइन रहता है तो आप लोगों को ये सब कुछ ड्रॉ करने के लिए मार्क्स है वहां पे. और डोंट केयर फॉर अदर कंडीशन. ओके. सी नाउ even though there are don't care condition, I have told you in short that you can consider that don't care condition if any pair is going to form. अगर कोई पेयर फॉर्म हो रही है वहां पे, क्यों या क्वाड फॉर्म हो रहा है और वहां पे और उसके बाद एक डोंट केयर आ रहा है, सो यू कैन फॉर्म क्वाड देयर. एक 1 है, उसके बाद क्रॉस है. क्रॉस मतलब डोंट केयर है. देन अगेन you can form pair there by considering this cross. You can either take it as 1 or 0. Okay, for our convenience. But now see there, you are having only 1 at the place of 0, 0, 0, 0. एक ही जगह है. उसके आसपास के अगर लोकेशन देखें, पॉइंट्स देखें, तो वहां पे आउटपुट क्या है? 0, 0, 0 है. क्रॉस नहीं है वहां पे, डोंट केयर नहीं है. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इज देयर फॉर्मिंग एनी पेयर? यस और नो? मैम लास्ट रो लास्ट कॉलम में एक डोंट केयर वाला कंडीशन है, बट क्योंकि हम लोग डायगोनली फॉर्म नहीं करते हैं इसलिए वहाँ पे फॉर्म नहीं कर रहे हैं मैम. नहीं, कहाँ पे वहां पे डायगोनली हो रहा है? वहां पे तो रेक्टेंगल हो सकता है ना. मैम जो लास्ट रो लास्ट कॉलम है ना वहाँ पे डोंट केयर ऑप्शन एक आ रहा है और एक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, 0, 0. यस मैम. सेकेंड लास्ट में भी क्रॉस 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 है. सेकेंड लास्ट में की पूरी रो है जो क्रॉस है, मतलब डोंट केयर है. यस मैम सेकंड क्लास तो पूरी है मैम, लेकिन वहाँ पे 1 नहीं मतलब कोई भी हाई इनपुट नहीं है इसलिए वहाँ पे हम लोग क्वाड नहीं बना रहे हैं. हाँ, सो नीचे की भी जो डोंट केयर की कंडीशन है उसके हिसाब से लास्ट का अगर स्क्वायर देखा तो वहां पे भी कोई 1 नहीं है क्या? कोई 1? मैम जैसे अगर 4 कॉर्नर्स पे 1 रहते थे तो जैसे हम क्वाड बनाते थे तो यहाँ पे 2. These are for only helping purpose. उनको आगे नहीं करना है. These are only for helping purpose. अगर वहां पे एक भी 1 है और वहां पे पेयर फॉर्म हो रही है तब आप ले सकते हो. 1 रहना ही चाहिए. ओके मैम. जैसे कैप्टन रहना ही चाहिए, वैसे 1 वहां पे रहना ही चाहिए. उसके सिवाय बाकी जस्ट दे आर हेल्पिंग टू फॉर्म अ पेयर. ओके मैम. ओके. अगर वही मैंने बोला, अगर 3, 1 है और एक डोंट केयर है तो हमें क्या दिक्कत रहेगी? पेयर करेंगे और फिर सर्कल करेंगे. इससे अच्छा है कि यू कैन फॉर्म दैट क्वाड. ओके.
सो जस्ट गो फॉर क्वाड। तब उस टाइम हम लोग उस डॉट की कंडीशन को क्या एज्यूम करेंगे, 1 एज्यूम करेंगे। गॉट इट? यस मैम। अभी जो एक ही 1 है वो ए बार बी बार सी बार डी बार की जगह है, और बाकी की जगह इट इज नॉट फॉर्मिंग एनी पेयर आल्सो। वो क्वाड तो छोड़ दो, पेयर भी कहीं भी फॉर्म नहीं हो रही है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट एनसर्कल दैट 1. Okay, and accordingly you have to write down the equation. Now our equation is what? Y is equal to a bar, b bar, c bar and d bar. Output को हमें ये चाहिए, a bar, b bar, c bar, d bar. So which gate we have to use? शुभम आप आंसर मत दो। Which gate we have to use? बाद में जो यूनिट्स है ना, हेग्स मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, 7 सेगमेंट डिकोडर एंड ऑल, we have to use many gates. So each one should know what is the output of each gate. That means which gate we have to use. इस सभी को समझ में आना चाहिए। वहां पे तो हम लोग बहुत सारे गेट यूज करने वाले हैं, बहुत ज्यादा लगेंगे। तो अभी मुझे बोलो, ये तो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। So which gate we have to use? एंड गेट। एंड गेट, वेरी गुड। वहां पे ड्रॉ भी किया है। सो एंड गेट, जस्ट गिव, ए ड्रॉ करने के लिए मार्क्स रहते हैं, ड्रॉ करो, ए बार बी बार सी बार डी बार, गिव द इनपुट एंड यू विल गेट द वाई। ओके, कोड समझ में आ गया? आज के लेक्चर का कोड है 9। ओके, शुड आई एंड द मीटिंग? और जो 9 एग्जांपल है आप लोग खुद से ट्राई करो अभी। I think you will get that answer. Okay, next lecture ko I'm not going to repeat this sum of product. We will go ahead and we will start product of sum, next topic. Okay, ओके मैम। only 2 points are remaining from this unit. 2 लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो नेक्स्ट लेक्चर को मुझे बोल दो। पता नहीं कल छुट्टी रहेगी तो डायरेक्ट हमारा मंडे का लेक्चर रहेगा। तो अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो लास्ट लेक्चर को मुझे बोल दो, फिर से हम लोग ओवरव्यू ले लेंगे। नो इश्यू। ओके ओके मैम। ओके। एंड फॉर ENTC स्टूडेंट, लास्ट प्रैक्टिकल में मैंने बोला था लेकिन नहीं हुआ क्योंकि वो नेट भी प्रॉब्लम हो रहा था मेरा। तो हम लोग जो पॉइंट्स आप लोगों को एक्स्ट्रा है वो मैं तब डिस्कस करूंगी 1 घंटे के बाद प्रैक्टिकल में। ठीक है? Okay, should I end the meeting now? यस मैम। यस मैम।